अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। Okay, yes class. Now take out your book and see the page number 140. Okay. Yesterday we have discussed about the chapter number 18. First we have discussed about the explorer. Yesterday we have discussed about the David Livingstone, okay, and Edwin Robert Peary. So you do the work about these two explorers. इन दोनों एक्सप्लोरर का काम कर लिया आपने? मैंने आपको तो बताया था तरीका से कैसे. Yes, have you done? No, teacher. No. So do you know how you do this? How you make the complete work about their exploration? I have given you. आप लोग का स्क्रीनशॉट लिया था ना उसका? याद है आप लोगों Yes, को? teacher. ठीक है. Yes, teacher. बता दो है ना किस तरीके से करना है काम. ये दोबारा बताना पड़ेगा. You see again this slide. I show you. Okay. This side. Okay. You do your all work of the chapter number 18 according to this. Okay. Everybody has, I have noticed you write the name of the explorer, date of birth, their age, and area of exploration. Okay, which area he explored. Okay, country of origin, you write it from where he belonged. Okay, their profession, their achievement, and at the last you write the conclusion. Okay, so you understand how you do this. अगर आपने आज नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपको जब तक जो है वो असाइनमेंट सबमिट करने की डेट हो तो आप सबमिट करवा दीजिएगा. ओके, मगर इस तरीके से करना है. ओके, वी हैव Teacher, कंप्लीटेड. यस टेल. teacher, I have done it. You have done good, very good. Okay, so all the students please do it this. Okay, not yesterday we have discussed about the David Livingstone and the Edwin Robert Peary. Okay, do you remember about that? Yes class, do you remember what is the achievement of the David Livingstone? डेविड लिविंगस्टन की अचीवमेंट्स क्या थी? इस क्लास याद है? कल हमने पढ़ा था इनके बारे में. इन्होंने क्या किया था? डेविड लिविंगस्टन ने क्या एक्सप्लोर किया था? He made the map of Central Africa. यस, ही मैप द मैप. एंड इसके अलावा भी और कुछ किया था उन्होंने. इनकी पिक्चर में मैंने दिखाया भी था. अगेन आई शो यू. यू सी दिस. He explored the river. Yes, you should see it. See this picture. Great Victoria Falls. Okay. He discovered Victoria Falls. Yes, he discovered Victoria Falls also. Okay. Yeah, of course, he made a map of Central Africa. Okay. And he also tried to discover the source of the River Nile, or maybe he discovered it, the source of the River Nile. Okay. And the second explorer we have discussed about Edwin Robert Peary. Okay. What is his main achievement? He was an Arctic explorer. Yes, he was an Arctic explorer. Okay, first person who reached on North Pole. Okay, and he also thoroughly discovered this Greenland area. Okay, you know it's this Greenland is near the North Pole, and he also make the planning of the Panama Canal and set down the principles of the Arctic exploration. Okay, so these are the achievement of this Edwin Robert Peary. Now we start the third explorer. Third explorer is Roald Amundsen. Okay, so now we start. Yes, who want to read? Yes, Adra, you have any question?
Yes, Hajra. Have you any question? Why you raise your hand? Yes, teacher. Teacher, I wanted to ask about the conclusion we have to write. How long should it be? It depends on you. Okay. At least I think 3 4 lines or short paragraph. If you write long, so it depends on you. Okay. At least 3 4 lines. Okay. So you conclude their achievement, especially their achievement. You write in the conclusion. Okay. 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 Now yes. चले आज ऐसे करते हैं किससे पढ़ा है जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है. कौन है इस वक्त? शायान. ये शायान, you read it. Yes, Shayan, you read page number 140, number 3, Royal Amundsen. Yes, Shayan. Shayan are sleeping. Okay, Josefa, you read. Josefa, wake up. ये देखिए अब ठीक है. जो क्लास में रीडिंग नहीं करेगा, अब बस हाँ चले आप रीड कर ले. ठीक है. आप जो रीडिंग नहीं करेगा ना, उसके एब्सेंट मार्क कर दूंगी क्लास में. ठीक है. जब क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है तो फायदा, ऐसे प्रेजेंट का कोई फायदा नहीं है ना, तो आप क्लास में पार्टिसिपेट ना करें. Okay, now see it in the book. Yes, yes, Aisha, start reading. He was a Norwegian explorer who, among his other polar voyages, voyages was the first man to reach the South Pole and to sail the fabled northwest passage from the Atlantic to the Pacific Ocean round the north of Canada. आगे पढ़े. He joined a sailing ship to the Antarctic in 1897, but it was frozen in the ice for 13 months, and the crew were the first people to overwinter in that region. Okay. In 1900. चलिए अभी हाँ जहाँ तक एक्सप्लेन करते फिर हम भूल जाते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया. ओके. सो क्लास रॉयल अमेंडसन was an Norwegian explorer. Okay. He was the first man who reached on the South Pole. Okay. And he sailed from the ship. Okay. And from the fabled route. ठीक है. इनका बहुत मशहूर जो इनका जो है वो पैसेज था from Atlantic to Pacific Ocean. From this route they go to North Canada. Okay. At in 1897 he joined the sailing ship. ठीक है. इन्होंने जो है वो 1897 में सेलिंग शिप ज्वाइन की और वहाँ से जो है वो फिर ये जो है वो साउथ पोल पे पहुंचे. बट he this ship was frozen in the ice for 13 months. तकरीबन 13 महीने तक जो है वो इनकी जो शिप थी वो आइस में फ्रोजन ही रही. ठीक है. और वो तकरीबन ये वो लोग थे जिन्होंने पूरा विंटर जो है वो वहाँ पे गुजारा. Okay, you know it's very difficult to survive on Antarctica, in Antarctica. Okay, in the winter season. Winter season में अंटार्कटिका में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है. और अंटार्कटिका में जो लोग एक्सप्लोरेशन के लिए, जो लोग साइंटिफिक वर्क के लिए जाते हैं, वो भी जो है वो वहाँ की विंटर में वापस आ जाते हैं. ठीक है. मगर ये लोग वहाँ पर जो है वो फंस गए थे और तो पूरा विंटर उन्हें वहीं पे जो है वो गुजारा है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट. यस अर्मीना. अर्मीना, यू रीड. In 1903, he bought a small ship and with a crew of 7 searched for the magnetic North Pole. He then sailed on round the north of Canada, where he found the bodies of Sir John Franklin Northwest Passage expedition which had disappeared 50 years earlier. Eventually, they reached Alaska and achieved the journey that man had sought for centuries. Okay. So, class in 1900, just a minute, Aliza. Okay. In 1903, the Amundsen bought a ship. Okay. And he go with their some friends or some people
he go for the searching of the magnetic north pole. ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था, उसकी सर्चिंग के लिए जो है वो फिर ये निकले थे अपने कुछ लोगों के साथ. ठीक है, एंड व्हेन ही रीच near the North Canada, so he found the bodies of the सर जॉन फ्रैंकलिन. ठीक है, सर जॉन फ्रैंकलिन की जो है वो उनको डेड बॉडी जो है वो उन्हें मिली थी. वो जो कि 50 तकरीबन 50 ईयर्स पहले जो है वो एक्सप्लोरेशन के लिए निकले थे और फिर वो लोगों को नहीं मिल पाए थे. ठीक है, तो उनकी जो है वो डेड बॉडी, उनकी कुछ लोगों की डेड बॉडी जो है उनको वहाँ पे मिली. ठीक है, now they reach in Alaska. ठीक है, एंड दे अचीव दिस जर्नी. ठीक है, यहाँ पर जो है वो इन्होंने जो है वो अपनी अलास्का पे जो है वो अपनी जर्नी यहाँ पर ख़त्म की थी. नाउ दे अगेन गो. ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद वो कहाँ गए. ओके, यस यस, हु वांट टू रीड. Teacher, can I read? ओके, यस, रीड इट. In 1918, he led an expedition to reach the South Pole, which he had in 99 days, with his men pulling sleds all the way. He set up a flag and markers for the Englishman Robert Scott, who was also racing to the pole. Scott, bitterly disappointed, set off back to his base, but he and all his men died of hunger and cold before they reached it. Okay, so class in 1918, again he start their journey. Okay, to the South Pole, and at least he did this work in 99 days, means the more than 3 months. Okay, and when he reached on the South Pole, he made up he set up their flag on there and mark on it. Okay, especially the person Robert Scott. ठीक है, इन्होंने जो है वो वहाँ पे जब पहुँचे साउथ पोल पे, तो वहाँ पे अपना फ्लैग लगाया, उस पर कुछ मार्क किए, क्योंकि इनके साथ एक और जो है वो एक्सप्लोरर थे, स्कॉट, रॉबर्ट स्कॉट. मतलब उनके इनके साथियों में नहीं थे, एक और इनके अपोजिट जो है वो भी जो है वो वहाँ पर उन्होंने भी एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया था, रॉबर्ट स्कॉट ने. ठीक है, तो मगर रॉबर्ट स्कॉट जो है वो उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंगर और कोल्ड की वजह से उनके वो और उनके बहुत सारे लोग जो है फिर वो ख़त्म हो गए, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और वो वहीं ख़त्म हो गए. वो बेस कैंप में वापस आ गए थे, फिर वहीं से वो लोग जो है वो ख़त्म हो गए, वो लोग नहीं जो है वो साउथ पोल को एक्सप्लोर कर सके. सो रॉयल एमंडसन was the first person he explored the साउथ पोल. ओके, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड. रॉयल एमंडसन को आपको दिखाऊँ मैं. ओके, एक सेकंड, बीच में कहाँ से आ गया. जस्ट अ मिनट बेटा, ये कुछ आगे निकल गया मैं. ओके, सो रॉयल एमंडसन. ठीक है, सो you see on your screen, this is the south pole. Okay, uh, this south pole is was discovered by this Roald Amundsen, and their ship is also here, you see on the screen. Okay, this ship he was used. Okay, when he passed the uh, अटलांटिक टू पैसिफिक ओशन. ठीक है, जब पैसिफिक में जो उन्होंने अपना जो है वो एक्सप्लोरेशन जो शुरू की थी, तो वो जो है वो इनका नॉर्थ वेस्ट का जो रूट था, जहाँ से वो जो है वो अटलांटिक से पैसिफिक ओशन के थ्रू जो है वो उन्होंने नॉर्थ कनाडा पे पहुँचे थे. ठीक है, तो नॉर्थ कनाडा को क्रॉस किया था, तो ये वो उनकी शिप है, और यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो साउथ पोल दिखा रहा है. आप देखिए, साउथ पोल इज कम्प्लीटली कवर्ड विद द आइस. यू नो, मैनी at least I think 60-70 feet आइस इज देयर. ठीक है, वहाँ पे कुछ छोटी मोटी नहीं, वहाँ पे आइस के जो है वो पूरे पूरे कंप्लीट आइस के जो है वहाँ पे माउंटेन्स है. ठीक है, इट्स अ वेरी मच कोल्ड एरिया. ठीक है, बट दिस रोयल एमंडसन वाज द फर्स्ट पर्सन हु रीच ऑन दिस कोल्ड एरिया ऑफ द साउथ पोल. साउथ पोल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपको ज़्यादा ठंडा एरिया है साउथ पोल एज कम्पेयर टू द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल से ज़्यादा जो है वो कोल्ड जो है वो साउथ पोल है. ठीक है, now the last paragraph. Yes, who want to read? Hamna, you want to read? Yes, Hamna. Okay, yes, Yusra.
In 1926, Emerson, using an Italian airship, flew across the North Pole, the first person to do so, and then continued to Alaska, becoming the first person to fly from Europe to America. The Italian airship made another journey towards the North Pole in 1928, but Crash. crashed. The, the No. Norwegian set out from Oslo. Oslo with four companions to search for the airship's crew, who were eventually rescued. Emerson's plane, however, vanished during the attempt, and the remains and bodies were not discovered for some months. Okay. This class in 1926, Amundsen, okay, used this Italian airship, okay, and he was the first person who fly from Europe to America, okay. He fly from Europe to America, and this Italian airship, okay, he also used for another journey, okay. In this journey, they also have their four companion, okay, class. So he were eventually when they reach on the this Alaska. So Teacher, from this, yes. teacher, here it is written that he flew across the North Pole, the first person to do. Teacher, Hmm. Edwin Robert Perry was Edwin the Perry, first to reach. he flew, ये यहाँ से फ्लाई करके गए थे, एडवर्ड रॉबर्ट पेरी वहाँ पहुंच गए थे, इससे फ्लाई करके चले गए वहां से, ठीक है। और एडवर्ड रॉबर्ट पेरी वहाँ वहाँ पे पहुंच गए थे, पहले पहले पर्सन थे जो वहाँ पर पहुंचे थे, ठीक है। इन्होंने वहां से, क्योंकि वो तो आप ये सोचिए कि 90 ठीक है ना, 1920 में हो गया, तो 1928 में इनकी डेथ हुई है ना इनकी। तो ये जो है वो ये वहाँ वो हो चुका था, लेकिन इन्होंने नॉर्थ पोल पे भी इन्होंने जो है वो एक्सपीडिशन की है, एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ उन एरियाज को ये भी गए हैं, ठीक है। लेकिन साउथ पोल पे पहुंचने वाले फर्स्ट पर्सन है। नॉर्थ पोल पे आपने शुरू में भी देखा था, शुरू में मैंने बताया था कि ये जो है वो उन्होंने जो है वो वहाँ पे एक्सपीडिशन की है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे नॉर्थ कनाडा गए हैं, तो ये नॉर्थ के एरियाज से कनाडा के, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल की तरफ भी ये गए, वहाँ पे भी एक्सपीडिशन की है, लेकिन साउथ पोल पे पहुंचने वाले फर्स्ट पर्सन है ये, ठीक है। इन्होंने वहाँ पे फ्लाई किया नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है ना, अलास्का, और इवेंचुअली वो अलास्का तक पहुंच गए, पहले सस्ते जो फ्लाई करके वहाँ पे पहुंचे थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे इटालियन एयरशिप जो है उन्होंने इसको यूज़ किया था, और जो कि उनको जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ लेके गई थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ उनका, वो अगर वो इवेंचुअली वो क्रैश हो गई थी, ठीक। So this Norwegian set out from the Oslo with four companion, okay। तो ये फिर जो है ये वो जो एक एयरशिप जो क्रैश हो गई थी, इसकी सर्चिंग के लिए ये अपने चार कंपेनियन के साथ जो है वो वहाँ गए थे, और उन्होंने फिर उनको रेस्क्यू कर लिया था, उन लोगों को जो कि इस एयरशिप से के क्रैश होने की वजह से वहाँ पे थे, उनको वो वहाँ पे, यानी कि वो ख़त्म नहीं हुआ, तो उनको जो वो रेस्क्यू करके ले आए थे एवेंसन, ठीक है, ओके। remains of bodies were not discovered for some months, ठीक है। एमेंडसन का plane however vanished during the attempt, and remains and bodies were not discovered for some months, ठीक है। उनका जो प्लेन था वो भी जो है वो फिर उनका के वो गायब हो गया वहां जाकर, ठीक है। और फिर वो जो है वो कुछ महीनों तक वो उनको नहीं मिल सका। यस क्लास, नाउ द एडमंड हिलरी। Yes, Teacher, Edmund. can I read? Yes, Digit. He was a New Zealander who became famous along with his Nepalese Sherpa guide Tenzing Norgay, 1914 till 86, for being the first to reach the highest point on Earth, the peak of Mount Everest Everest. in the Himalayas. This was on 29 May 1953. Hillary was awarded a knighthood हाँ. for his feat. In 1958, he led an expedition to the South Pole, and in 1985, he accompanied the astronaut. astronaut Neil Armstrong on a flight that landed at the North Pole.
In 1977, he led an expedition from the Mouth mouth of river gangs. Ganges to its source in the Himalayas. Sir Edmund Hillary was also committed to the welfare of the Sherpas through the Himalayan Trust set up by him and for ecological conservation of the Himalayas. कंजर्वेशन। चलिए आज भी पढ़ लीजिए। The 50th anniversary of हिलेरी एंड टेंजिंग Larry and Tenzing achievement was celebrated in 2003. Their sons Peter Hillary and Jameling Norgay climbed the Everest to commemorate the event. Edmund Hillary died in New Zealand in January 2008. चलिए हाजिरा से एक्सप्लेन भी करें जल्दी से। करेंगी क्या मर्जी आपके। चलो ओह, अच्छा ओके। यहाँ पे भी कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लीजिए। ठीक है सर। एडमंड हिलेरी जो है वो known for the Tenzing Norgay first to reach the Mount Everest। ठीक है। इनके चिल्ड्रंस के नाम है, इनकी डेथ डेट है, इनकी बर्थ की जो है वो डेट है। ठीक है। यहाँ पे आपको ईयर दिया, इन्होंने आपको डेट के साथ दिया हुआ है 20 जुलाई 1990 को उनकी बर्थ हुई थी। ठीक है। 11 जनवरी 2008 तक जो है वो 88 ईयर्स में इनकी डेथ हुई है। 1953 ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट, पीटर हिलेरी, सर एडमंड हिलेरी। ठीक है ना। ये वो शख्स है जिन्होंने जो है वो माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले जो है वो एक्सप्लोर किया था। ठीक है। सो नाउ we are discussing about the Edmund Hillary. Edmund Hillary was a New Zealander. Okay, it means he belonged to the New Zealand. Okay, and this Edmund Hillary and their in, एक इनके नेपालीस जो है वो इनके साथी थे, शिल्पा। ठीक है। बहुत ये इनके शिल्पा जो है इनके गाइड भी थे। ठीक है कि दोनों जो है वो both are work together and they go together to the Himalayas। Okay, Himalayas mountain, especially the peak of this Himalaya mountain, Mount Everest। ठीक है। यहाँ पे जो है वो ये दोनों जो है वो इन्होंने सर्च किया था सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है आपके अर्थ का। ओके, दिस इज द माउंट एवरेस्ट। तो फर्स्ट पर्सन हु रीच टू द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट। ठीक है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट के पर जो है वो ये पहुंचे थे। ठीक है। ठीक है। यू सी इट इज नॉट द माउंटेन वी कंट्रोल बट अवर सेल्फ। ठीक है। ये जो है वो एक माउंटेन, यू सी दिस टाइप ऑफ माउंटेन इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर इट और टू कंट्रोल इट। ठीक है। अब इस माउंटेन को देखिए, माउंटेन को जो है वो इनको एक्सप्लोर करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है ना। इट्स कम्प्लीटली कवर्ड विद द आइस एंड इट्स वेरी हार्ड माउंटेन। ठीक है। इनको इन पे जो है वो उनको एक्सप्लोर करना, इन पे जो है वो चढ़ना इनकी जो है वो इतना आसान काम नहीं है। बट this Amundsen with the Nepalese Sherpa, okay, both they go together and reach the peak point of the Himalayas mountain. This is the Mount Everest. This was done on 29th May 1953। ठीक है। हिलेरी को जो है वो हिलेरी एमंडसन जो है इनको जो है उसकी इस एक्सप्लोरेशन के नतीजे में इनको जो है वो नाइटहुड अवार्ड भी दिया गया था इनको। ठीक है। 1958 में जो है वो ये अगेन ही गो टू द साउथ पोल। ठीक है। 1985 एंड इन 1985 जैसे आपने कहा था कि नॉर्थ पोल जो है वो पहले डिस्कवर हो चुका था और एक्सप्लोर हो चुका था एडमंड पेरी के बाद रॉयल एमंडसन भी वहाँ पे गए। इस तरीके से साउथ पोल जो है वो डिस्कवर हो चुका था, एक्सप्लोर हो चुका था, फिर भी वो जो है वो एमंडसन जो है वो वहाँ साउथ पोल की तरफ गए थे। ठीक है। Amundsen go to the South Pole, okay, in 1985 with the नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। इन्होंने पूरे जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जो है वो फ्लाइट पे जो है उनकी फ्लाइट लैंड करी थी नॉर्थ पोल पे। ठीक है। उन्हें जो रॉयल एमंडसन थे इन्होंने जो है वो एक्सप्लोर जो है वो फ्लाइट के थ्रू नहीं किया था, मगर जब वो उसको एक्सप्लोर कर चुके थे उसके बाद जो है वो एमंडसन भी वहाँ पे गए।
ठीक है, and he go with the Neil Armstrong and who was land on the North Pole, ठीक है, in 1977. Okay, he also go to the source of the river Ganges, ठीक है, in the Himalayas. Himalayas से जो है वो river Ganges जो है वहाँ पे इसके source मौजूद. You know the what is the meaning of the source or mouth? Yes, class. Do you know about the meaning of the source and mouth? Yes, class. The source meaning from where the river is started. Okay, so you know that David Livingstone want to know the source of the river Nile. Okay, and this Edmund Hillary explored the source of the river Ganges from the Himalaya. Himalaya से जो है वो river Ganges जो है वो जो है वो आ रहा है, तो इसकी source को जो है इन्होंने जो है वो explore किया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ, ठीक है. एंड ही ऑल्सो सेटअप द ट्रस्ट. वहाँ पे हिमालय के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट भी कायम की थी, ताकि जो है वो इनके जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वहाँ के जो इन्वायरमेंट की वजह से जो उन लोगों को प्रॉब्लम है उनको जो है वो सेटअप किया जा सके, ठीक है. इन जो एमर्सन ने जो है वो माउंट एवरेस्ट को जब एक्सप्लोर किया उसके तकरीबन 50 ईयर्स के बाद इनके जो बच्चे थे हिलेरी के और टैरजिन के, इन्होंने भी दोबारा से 2003 में दोबारा से जो है वो माउंट एवरेस्ट को जो है वो एक्सप्लोर किया, या दोबारा वहाँ पे जो है वो उन्होंने वहाँ पे गए, ठीक है. इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए जो आज से 50 साल पहले इनके पेरेंट्स ने किया था, ठीक है, इन दोनों के. सो एडमंड हिलेरी डाइड इन न्यूजीलैंड इन जनवरी 2008. एडमंड हिलेरी जो है वो 2008 में इनकी डेथ हुई है न्यूजीलैंड के अंदर, क्योंकि वैसे भी आपको बताया ही वॉज अ न्यूजीलैंडर, न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक था, न्यूजीलैंड में ही इनकी डेथ हुई. बट देयर अचीवमेंट इज ही डिस्कवर एंड ही एक्सप्लोर द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट. ओके, माउंट एवरेस्ट को सबसे फर्स्ट टाइम जो है वो एक्सप्लोर किया था एडमंड हिलेरी ने, ठीक है. इसके अलावा फिर इन्होंने और जो है वो नॉर्थ पोल पे भी गए ये, और इन्होंने गैंग्स की सोर्स भी मालूम की, ये भी इनके अचीवमेंट्स में ही आती है, ठीक है. Now the Valentina Tereshkova. Yes class. Now the Valentina Tereshkova हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारा एक्सप्लोरर खत्म हो जाएंगे. Tomorrow we will start as साइंटिस्ट, ठीक है, हम साइंटिस्ट स्टार्ट करेंगे. Now the last explorer Valentina Tereshkova. Yes, who want to read? आप रीडिंग शुरू करें. 7 मिनट से मैं आप लोगों के अटेंडेंस भी मार्क कर रही हूँ. Yes, Aksa, you want to read? Yes, class, you tell me. Yasmin, yesterday, Yasmin is present. Yasmin was present on yesterday. Yes, class. Yesterday, Yasmin I present. think no, teacher. No. Okay. And Abdul Muiz is Teacher, cousin. can I read? Yes, yes, he did it. Okay, I mark your attendance. Okay. Valentina Yes, yes, read it. Valentina Tereshkova, 1937. Tereshkova was the first woman to fly in space, born in Russia. She worked in a cotton factory, but her hobby was parachuting. Parachuting. She applied for training to be an astronaut in 1961. 2 years later, she was sent up alone in the six-man manned Soviet rocket. She made 48 orbits of the Earth lasting over 71 hours. The same year, she married another Russian astronaut, and the birth of their first child in 1964 was a matter of great interest among scientists. They wanted to know if exposure to weightlessness and the other problems of space travel would affect any children born to such parents. Apparently, they did not. Okay. अच्छा थोड़ा सा और अटैच होगा. Yes. Tereshkova was awarded many honors and became deeply involved in communist politics, particularly for women causes. She continues to be a hero for the Russians. Okay. Now the Valentina Tereshkova. Okay. Valentina Tereshkova, I show you first this one. This Valentina Tereshkova was the first woman to fly in the space. Okay. Why we are give the name of this Valentina Tereshkova? Because the first woman he fly in the space
He was a Russian woman, okay, and he worked in the cotton factory. But her hobby is to parachuting, okay. And in 1961, uh, he worked with the astronauts, okay, and she was the first woman. She was the first lady. He go in space and do the 48 orbits of the Earth in 71 hours. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने तकरीबन जो है वो 71 आवर्स के अंदर तकरीबन 48 टाइम जो है वो पूरे अर्थ का जो है वो की ऑर्बिटिंग की इन्होंने, यानी कि पूरे अर्थ के चक्कर लगाया इन्होंने। ठीक है, उसी साल सेम ये जिस वक्त वो स्पेस में गई थी उसी साल उनकी जो है वो उनकी शादी एक और एस्ट्रोनॉट से हुई और उनके पास जो है वो एक बेबी की बर्थ हुई। और ज़्यादातर लोगों को इस बात में इंटरेस्ट था कि वो देखें कि उस बेबी के ऊपर उस चीज़ का क्या इफेक्ट हुआ, क्योंकि जो है वो वॉलंटियर टेस्ट हुआ तकरीबन जो है वो 71 आवर्स तक जो है जब वो स्पेस में रही। तो एक वेट, आपको मालूम है कि स्पेस में वेटलेस कंडीशन होती है। इन वेटलेस कंडीशन के अंदर वो देखना चाह रहे थे कि क्या इफेक्ट होता है बच्चे के ऊपर उसका। ठीक है, लेकिन they saw they no any effect on the birth of the child, okay. In when the Valentina Tereshkova go the space and afterward she was married with the another astronaut, okay. So apparently no any effect of this weightlessness condition on the birth of the baby, okay. Teacher, Tereshkova, can I ask one question? yes, yes ask. Teacher, when this lady died? No, she is alive, not died। ठीक है, ये अभी वैलेंटाइन ट्रस्ट का अभी तक लास्ट ईयर तक तो वो सर्वाइवर थी। ठीक है, अभी इस ईयर का मुझे नहीं पता अभी है या नहीं। ठीक है, ही आई थिंक 80 और मोर देन 88 ईयर्स इनकी एज हो गई थी, लेकिन ये भी अभी जिंदा है। ठीक है, अभी तक इनके Okay, teacher. ठीक है, अभी इनकी डेथ तक किसी नहीं हुआ। लास्ट ईयर तक तो मैंने इनका जो है वो पढ़ा था, वो जिंदा ही है अभी। ठीक है, अब अगर उनकी डेथ हुई तो पता नहीं मुझे इसके बारे में। ठीक है, टेलिस्कोप जो है उनको जो है वो बहुत सारे जो है वो अवार्ड्स दिए गए। और अब जो है वो एक कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और वो वुमेन्स के लिए जो है वो काम कर रही हैं। ठीक है, और अभी तक वो जो है वो रशिया की एक हीरो ऑफ द रशियन कहलाती है, क्योंकि रशिया की वो फर्स्ट लेडी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्पेस में जो है वो स्पेस में गई और स्पेस में जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया। और इसी कंडीशन में जब उनकी बेबी की बर्थ हुई तो लोगों ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया कि बेबी पे किसी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वेटलेस कंडीशन जो थी, जब आप जो है वो स्पेस में जो है वो आप फ्लाई करते रहते हैं, उस कंडीशन में भी जो है वो बेबी की बर्थ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो वैलेंटीना आज भी जो है वो रशिया की हीरो मानी जाती है। ओके क्लास, so this is the main explorer we have discussed, okay. Tomorrow we will again summarize this explorer and start the scientist। फिर हम साइंटिस्ट स्टार्ट करेंगे। अब जहाँ तक हमने पढ़ लिया वहाँ तक आप अपना काम जो है कंप्लीट कर लीजिए। ओके, who has a problem? Read the chat. Yes, हाजरा नहीं, born on earth, इनके चाइल्ड की बर्थ अर्थ पे ही हुई थी। ठीक है, लेकिन ये कि वो वहां से उस कंडीशन में जाकर आई थी, उसी कंडीशन में। ठीक है, उस कंडीशन का उस बच्चे की बर्थ पे क्या इफेक्ट हुआ वो ये लोग ये जानना चाह रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बच्चे की जो है वो हेल्थ पे सब कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, यस, अंडरस्टैंड क्लास दीज एक्सप्लोरर, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तुम्हारा भी Yes, teacher. कल हम जो है फिर इंशाल्लाह साइंटिस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक, माइंड यू कम वेरी लेट बेटा, सो प्लीज टिल द वैलेंटीना टेरेस्कोवा यू डू योर वर्क। वैलेंटीना टेरेस्कोवा तक अपना वर्क कंप्लीट कर ले, जिस तरीके से समझाया आप लोगों को उसी तरीके से वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, अकिंजा कल भी नहीं थी ना क्लास में? ओके बेटा, थैंक यू बेटा, आवर क्लास टाइम इज ओवर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Walaikum assalam. थैंक यू।